Maxpert is an expert in real estate. When Texan want to sell, buy, invest, finance, and insure real estate, they give us a call, and you can too. Call us at 800-450-8090. I always encourage you to go and visit our website, maxpert.com. That is maxspurt.com. Not only you will know more about our company, Maxpert, but you will also get access to lot of free resources that we put on our website just for you. So make sure visit our website maxpert.com and take advantage of all the resources that we have. You can search your property, you can start your mortgage application, you can get your insurance quote. So please do take advantage of it. Every week on Saturday, 12 noon, you will see a new episode of Maxpertier podcast. In this podcast, we bring a lot of knowledge, not just about real estate, but we also talk about mortgage, we also talk about insurance. But there is a unique thing about our podcast. We do this podcast in English. And a lot of time, when we say we do our podcast in English, people get surprised. They some are familiar, some are not, but it's a new kind of language, modern language, where it's a mix of English with other South Asian language. And the reason we want to put this together in this way so that the clients can enjoy not just the English version of our podcast, but also get the pinch of their own language. My name is Roy Malkison. I'll be your host for this podcast with my co-host, Mr. Nick Mirza. Bring this show, as I said, every Saturday. But before I get to our topic today, so let's welcome Mr. Mirza from DFW Real Estate Group. He's been in real estate market in Dallas for a long time. And, sometimes I say when they were thinking about Dallas, Mr. Mirza was here. So please welcome Mr. Nick Mirza, and then we can take this program forward. Good morning, Nick bhai. Good morning, Roy bhai, and good morning, everyone watching and listening to us around the world. And there's a very good thing you said about English. So let me just say that जी Urdu बनाई गई थी मुगल किंगडम में. जी I think शहंशाह अकबर ने बनाई थी, and is a mixture of so many languages. वो थी मुगल किंगडम. जी Started with M. हाँ जी ये अच्छा, ये मैंने नोटिस नहीं किया. Now the English has been created by Maxpert Kingdom. Also it started with M. जी जी So that's not a coincidence. जी. It was done intentionally. जी So that way our clients who are here within United States, they can understand thing we talk about real estate in their own language. जी जी So without any further ado, देखती आँखों सुनते कानों, डैलस की दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग से और यहाँ की ब्यूटीफुल फजाओं से आज जनवरी की 7 तारीख 14 तारीख सॉरी आप एक हफ्ते पीछे घूम रहे हैं, जनवरी की 14 तारीख, जी ब्यूटीफुल वेदर, और वहाँ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं. निक एंड रॉय आपके लिए रियल एस्टेट की बातें लेकर आए हैं और खुशामदीद कहते हैं. जी बिल्कुल निक भाई, एज यूजुअल बहुत इम्पोर्टेंट है सभी दोस्तों को एक बार फिर से एक पंजाबी में एक कहावत है कि खिड़े मत्थे मिलना. कहने का मतलब एक हैप्पी जो जिसको कहूँगा कि एक नज़रिया है आपका ना, कि जब आप किसी से मिलते हैं, हर इंसान के अपने कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू मीट आवर क्लाइंट्स एंड आवर फ्रेंड आउट देयर टू अच्छे पॉजिटिव नोट पर. निक भाई, एक चीज़ जो आपने मेंशन की खासकर इंग्लिश के लिए कि उर्दू लैंग्वेज इट वाज अ मिक्स ऑफ हिंदी, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, Arabic language and all that Persian stuff, Persians and they turn it into such a day-to-day language because people coming from other country, they bring a lot of stuff, not just the
ideas but also the language, and when you bring that in, it meant to create something new. बिल्कुल. And that's why we always give a lot of importance to कि जो वैल्यू एडिशन है किसी भी काम के अंदर, चाहे वो आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा है ज़्यादा है, आई मीन वैल्यू एडिशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. और हमेशा एट मैक्सपर्ट वी ऑलवेज बिलीव इन वैल्यू एडिशन. देखिए, वैल्यू एडिशन की अगर बात करें, कोई भी कल्चर ले लीजिए, कोई भी ट्रेडिशन ले लीजिए, हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, हर कल्चर में, हर ट्रेडिशन में, हर मुल्क में, हर लोगों में जी बहुत अच्छी बातें होती हैं जी. उसको अडॉप्ट करके और उसको साथ लेके चलना, जिस कंट्री में आप हैं उसको मिला के, दैट्स द गुड थिंग टू डू. जी बिल्कुल. और खैर अमेरिका के अंदर इस चीज़ के लिए हम लोग ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे एक जो एक्सेप्टेबिलिटी है किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा दोनों हाथों से वार्म वेलकम हमें मिलता है. जी बिल्कुल. दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आपको परेशानी है, आप यहाँ जाइए, दे वेलकम यू. जी बिल्कुल. निक भाई, परेशानी खैर अभी जो मार्केट के अंदर एक चीज़ की मार्केट में बहुत परेशानी चल रही है. हाँ, मार्केट के अंदर जो परेशानी है, आई थिंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कुछ परेशानी अभी भी बनी हुई है. लास्ट वीक वो ठीक हो जाएगी जी. उम्मीद है 6.20 पे 30 ईयर का मॉर्गेज, 15 साल का मॉर्गेज चल रहा था पिछले हफ्तों में 5.70% पर, जंबो 5.60% पर, और जो उसकी लिमिट है दोस्तों वो बढ़ गई है जंबो की. अब तो 745,000 तक जो है जंबो कंसिडर होता ही नहीं है. तो वो चीज़ है. 551 आर्म पर 6.21% एंड देन 30 ईयर FHA इस वक्त कोई 6% के आसपास फ्लोट कर रहा है. जैसा निक भाई ने कहा, अगेन बी पॉजिटिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस मत करें, एक्विजिशन पे फोकस करें. बिल्कुल. जी. देखिए, जो चीज़ चेंज हो जाती है ना, उस पर आप फोकस नहीं करें. जी. जो चेंज नहीं होती है उसको फोकस करें कि हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसलिए कि उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होनी है. जी जी. निक भाई, एक और चीज़ जो पिछले हफ्ते भी हमने देखी थी कि मार्केट अपने आप में जो गवर्नमेंट का एक आइडिया था कि मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट करना है, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज़ में वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ा उसकी वजह से जो प्राइजेस हैं, जो ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस थे, मैं हमेशा से कहता हूँ करेक्शन हो रही है. डैलस काउंटी के अंदर इस वक्त अगर सभी प्रॉपर्टीज़ की दोस्तों एवरेज की बात करें तो $327,000 के आसपास इस वक्त मीडियन सेल प्राइस. अगर यही चीज़ मैं आपको डेंटन काउंटी में इस वक्त जो मीडियन सेल प्राइस है तकरीबन $445,000 के आसपास, और अगर यही चीज़ कॉलन काउंटी में चेक कर लें तो कॉलन काउंटी में इस वक्त तकरीबन 491. कॉलिन काउंटी में ज़रा ग्राफ देखिएगा कि 6 महीने पहले कहाँ थे हम. जी देखें, मई ऑफ 2022 के अंदर दोस्तों 575,000 पर मीडियन सेल प्राइस चल रहा था, जो कि इस वक्त 491,000 पे है. देख लो जी. हम इसे कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे. जी जी. और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड यहाँ पे जो ओवरऑल एक जो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का एक जो मोटिव है हमेशा से, टू कीप इट ओपन फॉर ऑल द बिजनेसेस, एक चीज़, एंड नॉट जस्ट द बिजनेसेस, बल्कि ये नहीं है कि आप सिर्फ अब कई स्टेट्स में ऐसा है कि दे आर सो प्रो इनटू बिजनेस की उसमें जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि रह जाती है पीछे. लेकिन टेक्सास एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे नॉट जस्ट फॉर द बिजनेसेस बट दे आल्सो क्रिएट मासेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी फॉर द मासेस. तो उसकी वजह से देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी इज स्टिल इन टेक्सास. एक तो आपको बहुत कम पैसों में मिल जाता है कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स के. बहुत कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम पैसों में मिल जाता है. जी. सो निक भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, बात कर रहे थे कि अभी पहले हम टॉपिक पे बात करें, अभी थोड़ी सी बात कर लीजिए, चूँकि हम इसके मॉर्गेज के बारे में बात कर रहे हैं. जी. लास्ट वीक जो चेंज हुआ 2 हफ्ते पहले FHA का, जी उसमें जी FHA के अंदर जो है उसमें जो डैलस में कैसे FHA की लिमिट जो है डैलस के अंदर इस वक्त, मैं आपको एक सेकंड इसके बारे में बताया था, क्योंकि लिमिट जो है दोस्तों पिछले हफ्ते के अंदर चेंज हुई हैं, जहां FHA के अंदर इस वक्त सिंगल फैमिली यूनिट के लिए जो डिफरेंट काउंटीज़ का डिफरेंट है, बट एक एवरेज में आपको दे रहा हूँ तकरीबन 470,000 प्लस 470,000 तक जो है सिंगल यूनिट का. ड्यूप्लेक्स के बीच में तकरीबन 600,000 तक चला गया लिमिट FHA का. अगर आप ट्रिप्लेक्स ले रहे हैं
30,000, और अगर आपके पास 4 प्लेक्स ले रहे हैं और FHA की तरफ आपका आइडिया है लेने का, तो इस अबाउट क्लोज टू 900,000 जो है इस वक्त लिमिट है टेक्सास के अंदर। अगेन जिस काउंटी में आप होंगे उसी काउंटी में, बट ओवरऑल टेक्सास जो है अनिक भाई एवरेज वही है आपकी जो अच्छा, सिंगल। थोड़ा से बताइए कि अब चूंकि इसमें मल्टी फैमिली भी आ जाता है जब when it comes to 2 प्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्राइप्लेक्स एंड 4 प्लेक्स। जी, अब 4 प्लेक्स जो है वो 900,000 का लिमिट है FHA की। तो अगर आपके पास इन्वेस्टर है और वो बाय करना जा रहा है, जी, कैन ही गेट FHA ऑन 4 नहीं प्लेक्स? इन्वेस्टर के देखिए FHA जो प्रोग्राम है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसको करेक्ट भी कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर नहीं हुई, क्योंकि FHA जो प्रोग्राम है वो इट्स अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, और गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि आम पब्लिक के लिए हाउसिंग क्रिएट करना है। FHA प्रोग्राम जो है इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता। इन्वेस्टमेंट लोन के लिए इन्वेस्टर हैव टू पुट लॉट मोर मनी डाउन टूवर्ड्स द परचेज। हाँ, लेकिन उसमें मेरे ख्याल है एक काम कर सकते हैं वो, जी, अगर आपने 4 प्लेक्स लिया है, आउट ऑफ 4 इफ यू यूजिंग 1 फॉर योर ओन प्राइमरी रेजिडेंस, देन आई थिंक यू कैन बी एलिजिबल फॉर FHA। क्या कह रहे हैं आप, एक बार दोबारा इसको कह दें, क्योंकि मैं फॉलो नहीं इसको कर पाया। इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ जी, अगर आप 4 प्लेक्स ले रहे हैं, 4 प्लेक्स में 4 यूनिट्स होते हैं जी, उसमें से एक यूनिट जो है आप जो अपने पास, हाँ, अपने प्राइमरी रेजिडेंस कर रहे प्राइमरी हैं, रेजिडेंस, हाँ वो 3 दूसरे जो है उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए फिर उसके आप FHA ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें हाँ, ये रीज़न मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आप तो लैंडिंग में मास्टर हैं कि ये FHA में जो है, एक तो अगर इन्वेस्टर्स आए इस तरह से, जी, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सिंपल हैं जी, और बहुत थोड़ी डाउन पेमेंट रखनी पड़ती है वर्सेस कन्वेंशनल। बिल्कुल तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी 4 प्लेक्स में अप टू $900,000, जी, तो उसमें ये कि आप एक जो है एज ए प्राइमरी रेजिडेंस अपने लिए यूज कर सकते हैं, जी, और 3 आप रेंट करके वहीं से कमाएं, वहीं से पे करें। जी, ऐसा ही होता है। वेरी गुड आइडिया, ऐसा वेरी गुड आइडिया। वो 3 से आपकी इनकम आ रही है, वहीं से कमाया, वहीं से बेच दिया, जी बिल्कुल, इसमें कोई और आप सारा दिन सोते रहें। दिस इज व्हाट दे से अबाउट द रियल एस्टेट, इट मेक्स मनी फॉर यू व्हाइल यू आर स्लीपिंग, और इसमें कोई झूठ नहीं है। जी बिल्कुल, हम दोनों जिंदा मिसाल बैठे। जी बिल्कुल, अगर आप देखें इफ़ यू डू इट राइट दोस्तों, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम क्योंकि जब हम एक इंसान की एक फितरत है निक भाई कि जब हम कुछ टीवी पे देखते हैं, किसी से सुन लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे लिए नहीं है, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि ये हम भी कर सकते हैं, इट चेंज द होल पर्सपेक्टिव, होल माइंड। जो हमारा आज का टॉपिक में उसमें यही चीज़ है, तो उसी के बारे में बात करें कि ये जो फैक्टर्स जो होते हैं ना जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जी, उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट जी बिल्कुल दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, सो वी वांट टू टॉक अबाउट आवर वैल्यू प्रोपोजिशन। मैक्सपर्ट में ऐसा क्या है जो कि कंपैरेटिवली दूसरे जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे शायद आपको ना मिले। एक जो कॉमन प्रॉब्लम है मैं इसको प्रॉब्लम ही कहूँगा निक भाई कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम ये हो गई कि आजकल लोग वैल्यू एडिशन कम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग वैल्यू एडिशन, और उन्होंने वैल्यू एडिशन को मॉनेटरी वैल्यू बना दिया। बिल्कुल। और मॉनेटरी वैल्यू में क्या है कि ठीक है, अगर मेरे पास आई एम जस्ट अ लाइसेंस होल्डर, आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा उसके बीच में ट्रांजैक्शन के अंदर, एंड दैट्स द ओनली वैल्यू बायर भी देख रहा है, और कहीं ना कहीं जो लाइसेंस जो रियल एस्टेट के भी हमारे लोग हैं वो भी इस चीज़ को इस हद तक इग्नोरेंस में ले गए हैं कि दे डोंट इवन कीपिंग द जो एक स्ट्रेचर था एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, या एक एज बीइंग अ रियल एस्टेट एडवाइज़र, वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। वैल्यू एडिड जो है, जो कि होनी चाहिए कि जिसमें आप अपने क्लाइंट को जी काफ़ी चीज़ें ऐसी देते हैं कि जिसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं, जी, क्वालिटी भी आ जाती है, तो उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है पैसे से कि वो सारी चीज़ें आप छोड़ दें, आप ये पैसे ले लें और चुपके होके घर ले लें। जी, तो उसमें क्या होगा, चुपके होके घर तो ले लिया, लेकिन घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जी, अब वो जो पैसे जो मिले उनके, उससे उतने पैसे से उनका प्रॉब्लम हल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसकी ड्यू डिलिजेंस जो है सही तरह से करें और उसमें वैल्यू एडिड द वे इट्स सपोज टू बी, एथिकली, प्रोफेशनली एंड प्रैक्टिकली जो होना चाहिए उस तरह से करें, तो वो जो पैसे जो देना उसके मुकाबले में आप उनको 3, 4, 5 गुना ज़्यादा उनको चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
जी बिल्कुल दोस्तों। सो देखें, एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इस चीज़ को समझना, मुझे लगता है निक भाई कि अगर हम इसको एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक इलस्ट्रेशन के ज़रिए हम इसको समझाएं कि आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो शायद बहुत सारे हमारे दोस्त जो लाइसेंस होल्डर हैं, खासकर जो नए लाइसेंस होल्डर हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। दे आर नॉट, वो इस चीज़ को नहीं, बहुत चीज़ें मिस कर बहुत जाते हैं। चीज़ें मिस कर जाते हैं लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये मिस कर लेते हैं कि इस वक्त जब भी वो किसी क्लाइंट को या कोई भी जो जिसको रियल एस्टेट लेनी है, जब वो उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, दे डोंट गेट और इतना, या फिर मैं कहूँगा कि टाइम नहीं देते टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ दैट क्लाइंट। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अब किसी भी चीज़ में, और घर जो है ऐसी चीज़ है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, उसकी क्राइटेरिया, दूसरी चीज़ें, जब तक वो आप सही तरह से नहीं समझेंगे, आप अपने क्लाइंट को सर्व नहीं कर सकते। जी, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने की हैं, थाउजेंड्स ऑफ हम, सबसे पहले हमने बैठ के क्लाइंट को अच्छी तरह से समझाया, जी, उससे बातें की, उससे पूछा है सारी चीज़ें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। और जो निक भाई एक ना कॉमन, मुझे ये लगता है कि कॉमन जो इस वक्त एक फियर है किसी भी फर्स्ट टाइम होम बायर के अंदर, आई थिंक सबसे पहला तो एक कॉमन फियर उनको ये लगता है कि शायद वो जो उनकी करंट इनकम है उसके बीच में वो कभी भी मकान नहीं ले सकते। और जो कि मुझे ये लगता है कि बहुत दफ़ा ऐसा नहीं होता, और उसमें हमारे कितने ही मेरे ख्याल 100 के हिसाब से हमारे पास क्लाइंट हैं जिनका जो क्राइटेरिया, उनको ये लगता था कि मकान नहीं ले सकते, और लेकिन उनको भी मकान जो है वो मिले, और एंड दे आर रनिंग देयर मॉर्गेज सक्सेसफुली। उसका सबसे पहला चीज़ जो है वो जिसको हम कहते हैं फियर फैक्टर। जी, वो फियर फैक्टर, ऐसा डर जो है ना, वो पूरी पूरी नेशंस तबाह कर देता है। जी, अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है, जी, किसी कम्युनिटी को, इवन अपने, फॉर एग्जांपल छोटी सी बात से शुरू करें, अपने घर में बच्चों को कंट्रोल करना, बच्चों को भी घर जब छोटे होते हैं तो क्या उनके अंदर फियर पैदा किया जाता है, देखो ऐसा नहीं करना ऐसा हो जाएगा, देखो यूं नहीं करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कम्युनिटी को कंट्रोल करना है, उसमें आप फियर फैक्टर फैला दें। सिटी को कंट्रोल करना है, उसमें कंट्रोल फैला दें। नेशंस कंट्रोल करनी है, फियर फैक्टर फैला दें। किसी भी चीज़ का हो सकता है, इट कुड बी पेंडेमिक, इट कुड बी थ्रेट्स, इट कुड बी टेररिज्म, एनीथिंग। फियर फैक्टर ऐसी चीज़ है कि वो आपकी जो साइकोलॉजिकली जी ऐसा इफेक्ट करती है कि आपकी जो सोच है ना, जिस चीज़ के लिए आप जो, वो ख़त्म होकर रह जाती है। जी बिल्कुल। एक मैं लिस्ट ये पढ़ रहा था निक भाई कि लिस्ट आउट किया कि कौन से ऐसे फियर हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर हमेशा सोचता है। तो पहला फियर जो कहते हैं कि जो क्लाइंट हमेशा फियर करता है, वो कहता है कि उसको ये लगता रहता है कि बेटर ऑप्शन कहीं है अवेलेबल। काम अभी शुरू नहीं किया, किसी से बात नहीं हुई कि, लेकिन वो बैठा, उसको ये लगता है कि वो कंप्यूटर पे बैठा है, गूगल कर रहा है, और वो सोच रहा है कि शायद बेटर ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। गूगल पे अगर सारी चीज़ें मिल जाती तो बात ही क्या थी। जी बिल्कुल। और दूसरा जो फियर है वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मुझसे मॉर्गेज अफोर्ड नहीं होंगी। यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो जिनको शायद अमेरिका में आए तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, क्योंकि अभी तक वो मैक्सपर्ट के एक्सपर्ट से नहीं मिले हैं, तो अनफॉर्चुनेटली दे आर स्टिल इन अपार्टमेंट, दे आर पेइंग, ऐसा नहीं है कि बहुत कम, कोई $500-400 का रेंट दे रहे हैं, दे आर पेइंग अबाउट 15-16 More than that. $1,900 I just dollar met a a month. family last week. जी, Roy bhai, they are paying $3,200 a month in Las Colinas Hmm. for 2 bedroom and 2.5 bath. $3,200 including water, utilities and everything. जी, That's more than a mortgage. जी, That's more than a mortgage. एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि अभी एक एग्जांपल इसका दोस्तों, बहुत ही रीसेंट एग्जांपल ये है कि अगर आपने पेंडेमिक में देखा होगा, जब मार्केट जो है वो हाई पे गई, उस मार्केट के अंदर बहुत से हमारे दोस्त ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टियों की वैल्यू जो है इवन 150,000 तक भी चली गई। बिल्कुल। तो आप ये समझें कि आपकी पेमेंट उतनी है, आपकी कोई टैक्स नहीं बढ़ा, आपका कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी वैल्यू एडिशन जो है, आपकी जो नेटवर्थ जो है, एक तरह से एसेट वैल्यू वो आपकी बढ़ गई। लेकिन यही काम अगर आप मॉर्गेज उसमें लीज में कर रहे हैं, उसमें वो जो 1.5 लाख का बेनिफिट है, पे आप कर रहे हैं उस घर के लिए, वो 1.5 लाख का बेनिफिट लैंडलॉर्ड को हो रहा है। इसलिए कहते हैं लैंडलॉर्ड बन जाएं जल्दी से। ये फियर फैक्टर जो है ना, इसको आप ख़त्म करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं घर लेने में। जी।
और इवन तो जो जिन्होंने घर लिया हुआ वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लेने के लिए भी डरते हैं कि पता नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो द बेस्ट वे यू टॉक टू एन एक्सपर्ट हु हैज एक्सपर्टीज इन रियल एस्टेट फील्ड. उनके साथ आप बैठें, उनसे बात करें. एंड देयर आर सो मेनी वेज गाइस. हम अमेरिका में रहते हैं जी, which is a land of opportunity. This is a blessing that we live in this country. जी. तो आप किसी के साथ बैठें, ऐसे के साथ बैठें जिसके पास नॉलेज हो. जी. वही आपको जो है एक्सपर्ट उस चीज़ में आगे बढ़ा सकता है. आपकी पैसिव इनकम जिसके हम बहुत जोर देते हैं कि आप ऐसी एम्पायर, ऐसी लेगेसी बनाएं कि आपकी पैसिव इनकम आ जाए कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. अगर आप इफ़ यू आर इन 30s टुडे, we can show you and we can guarantee you by the time you in your 50s you can retire and you will have a luxury life. जी बिल्कुल. और अगेन अनिक भाई, जैसे अभी 2 fears की हमने बात की. एक तो कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम सही नहीं है, मुझे कुछ बेटर मिल जाएगा, वेट कर लूँ. दूसरा हमने फियर बताया कि मॉर्गेज का फियर है, मेरे से अफोर्डेबिलिटी होगी नहीं होगी. एक जो और सबसे ज़्यादा बड़ा फियर ये होता है कि एक हमारी ना जो आदतें हैं, मतलब फाइनेंसेस को हैंडल करने की, उसमें एक वक्त ऐसा था कि मैं खुद भी था उसमें, राइट. तो जो एक हमारी आते हैं, हम क्या करते हैं, आईफोन $1000 का लेने में 1 मिनट नहीं लगाते. एग्जैक्टली. लेकिन दूसरी तरफ हम कॉफ़ी $6 $7 की स्टारबक्स से लेने में, वो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हम वो लाइफ स्टाइल है, हम उस चीज़ को नहीं सोचते. लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू सिट विद योर रियल एस्टेट प्रोफेशनल, लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसेस वाला क्वेश्चन जब आता है, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं. देखिए आपने की मेंटालिटी क्या है, साउथ ईस्ट एशियन आई एम टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर, शो ऑफ करने की. घर अगर आपके 100 जानने वाले हैं, 100 ऑफ देम, उसमें से आई थिंक मे बी 4 or 5 वो आपके घर आते हैं. बाकी 90-95 जो आपके घर नहीं आते, वो क्या देखते हैं, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपके हाथ में कौन सा कॉफी का कप है, आपके हाथ में कौन सा फोन है, आप कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कौन से शूज पहने हुए. दैट्स व्हाट इट इज. उससे आपकी पैसिव इनकम नहीं बन रही, बल्कि जो बनी हुई है वही घटती जा रही है. जी जी. तो बेहतर यही है कि वो जो आपकी मेंटल प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको ख़त्म करके सिट डाउन विद एन रियल एस्टेट प्रोफेशनल, नॉट गूगल, नॉट समवन हु हैज लर्न एवरीथिंग from the social media, because that's a bluff. Okay, that's not the right and correct information you can get from anyone. ताकि वो आपको पैसिव इनकम दिखा सकें, किसी प्रोफेशनल के साथ बैठें. जी बिल्कुल. और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट मेनी टाइम्स इन आवर प्रीवियस प्रोग्राम्स, दैट the first step that you need to take when you're thinking about getting into real estate or buying or investing into real estate, make sure you find the best realtor. And realtor because एक वो, अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ कि वो एक सूत्रधार है, एक वो जैसे निक भाई एक माला होती है ना, उस माला के अंदर जैसे बीड्स हैं, सुई के साथ. हाँ जी. जो वो बीड है, जो वो रियल्टर है या रियल एस्टेट एडवाइजर है, वो धागा है. क्योंकि वो जो धागा है, वो जो खूबसूरत आपका नेकलेस है, उसको बनाने वाला जो है वो रियल्टर है. व्हेन यू फाइंड जो सीक्वेंस जो उसकी बन रही है, वो रियल्टर बना रहा है, वो रियल्टर बना रहा है. बहुत खूबसूरत. तो उसके बीच में जो इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो आपका धागा है, जो सूत्रधार है आपका, वो इम्पोर्टेंट है. यू हैव टू फाइंड द राइट रियल्टर. एंड अगेन मैक्सपर्ट के अंदर निक भाई को तकरीबन, मेरा ख्याल निक भाई 27-30 साल हो गए हैं आपको रियल एस्टेट में, और 20 साल मुझे हो गए हैं रियल एस्टेट. 50 साल तो यहाँ बैठे हैं, 50 साल तो एक्सपर्टीज. बाकी जो हमारी टीम पूरी है उसको लगाने तो 100 से ऊपर ही हो गए. जी बिल्कुल. और साथ में फिर हमारी टीम है, चाहे वो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, मॉर्गेज प्रोफेशनल्स हैं, या फिर आपके टाइटल कंपनी के लोग हैं, या अप्रेजर करने वाले लोग हैं. ये सारी जो टीम है, दे हैव so much of experience. Title company में हमारे जेफ डफी, I think he's been doing it for 35 years. उनको टाइटल का काम करते हैं. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उनको नहीं पता होगा. सेम विद द इंस्पेक्शन, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, चार्ल्स होम्स हैं, बेंजामिन फिशर हैं. जी, ये लोग जो हैं, they've been in market for very long time. Not just they know about how to inspect a property, but they were on the other every side of real estate. रियल एस्टेट उन्होंने किया एज ए एजेंट, रियल एस्टेट उन्होंने किया एज ए बिल्डर, रियल एस्टेट उन्होंने एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो सब कुछ कर चुके हैं. और उसके बाद जब आप
किसी क्लाइंट को जब आप अपना सजेशन देते हैं तो इट्स मोर लाइक अ सॉलिड सजेशन। एक और जो अफ्रेड लोगों के अंदर होता है निक भाई कि पहले तो ये सोचते हैं कि कुछ अच्छी और चीज़ मिल जाएगी, और उसके बाद कुछ एक डिफरेंट तरह का भी एक जिसको कहूँगा कि एक ग्रुप है जो ये सोचता है कि उसको ये लगता है कि भाई महंगी हो गई है प्रॉपर्टी, ली नहीं जाएगी अब बहुत महंगी हो गई है, बस डन हो गया, इसके बाद अब है ही नहीं है हमारे। नहीं देखिए, हम तो हमेशा से कहते हैं जो प्रॉपर्टी आप आज देख रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे भी जी, या फिजिकली भी आप जाके देख रहे हैं, कल उसको कोई और देख के जा चुका है जी, जी। वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए प्रॉपर्टी रखी है जी। एज फार एज प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, हाँ प्रॉपर्टी एवरी डे महंगी होती जा रही है। अगर आपने कल नहीं ली, आज उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है जी, आज नहीं लेंगे कल उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। तो वो अगर आप इसी तरह से, जैसे हमने पहले भी शो में कहा था, अगर आप साइड लाइन पे बैठे ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखते रहेंगे कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी इसकी वैल्यू, जी, आप हमेशा साइड लाइन पे रहेंगे जी, आप कभी फील्ड में आएंगे नहीं। फील्ड में प्लेयर्स आते हैं, दे टेक रिस्क। जी, कोई सा भी गेम देख लीजिए, अपना फुटबॉल देख लीजिए, उसमें कितना समझ लीजिए जान जोखों का खेल होता है वो। जी, अभी जी। पिछले हफ्ते वो बेचारा बिल का जो बफलो बिल्स का, आई होप ही इज फीलिंग बेटर, आई एम वेरी हैप्पी मैंने फॉर हिम सुना एंड है हिज थोड़ा फैमिली। बेहतर है उसकी सेहत। तो मतलब ये कि यू हैव टू कम इनटू द फील्ड, कोई सा भी हो, जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे और खेलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। जी, दूर बैठे हुए, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, जी। वो आपको वैसे ही लगते रहेंगे और आप जो है वो ढोल सुनते रहेंगे, लेकिन आपके हाथ में ढोल कभी नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ जो डिफरेंट है दोस्तों, अगर आप हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं देन और अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली सुनते रहेंगे, एक फ़र्क आप में आ जाएगा, जहाँ से जो फियर का जोन है, ये वो जोन है जो जिन्होंने अभी तक हमारा पॉडकास्ट नहीं सुना या जिन्होंने अभी तक हमें फ़ोन नहीं किया या जो अभी तक हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं आए, लेकिन जो क्लाइंट मैक्सपर्ट के एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनके लिए ज़िंदगी जो है निक भाई आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है? वी हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट के लिए इस जर्नी को शुरू कैसे करना है। वी हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड देयर वांट्स। ज़िंदगी आसान भी हो जाती है, ज़िंदगी हैप्पी भी हो जाती है जी, और इतनी हैप्पी हो जाती है कि फ्रॉम अ कस्टमर टू द क्लाइंट to the friend and then beyond the friendship. That's how we build our group and our friends. And वो ये कि हम उनको साथ लेके चलते हैं, उनको दिखाते हैं एक रास्ता। अभी कितने clients हैं जिनकी हमने पहले भी examples दी है, 3 साल के अंदर within 3 years they own 3 properties. जी, and we show them how to do it. Not just the residential but commercial. जी, तो आप बैठिए, कॉल कीजिए, राब्ता कीजिए, लेंडिंग के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हम आपको जो आपका क्वेश्चन है, आपका जो फियर फैक्टर जो है ना, उसको ख़त्म करें। जब तक वो फियर फैक्टर ख़त्म नहीं होगा, आप नहीं बढ़ सकते आगे। जी बिल्कुल, और हमेशा से जहाँ तक ज़रूरतों की बात है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसा पहले भी मैंने आपको कहा है कि अगर आप किसी अच्छे रियल्टर के साथ बैठेंगे, वो आपकी हेल्प करेगा। आपकी ज़रूरत और आपकी इच्छा में जो डिफरेंस है, ज़रूरत क्या है जो दैट यू नीड टू हैव। अब ज़रूरत के बीच में कौन सी चीज़ें आती हैं? अगर आप एक छोटी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाएंगे, तो आप ISD को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप कामकाजी हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, यू वांट टू स्टे क्लोज टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्क, जहाँ पे आप रहना चाहते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिट विद योर रियल्टर, डू योर बजट प्लानिंग। आपके कितने पैसे आप डाउन देंगे, वो ज़रूरी है। जब आपको ये पता चलेगा कि आपके पास पैसे कितने हैं डाउन पेमेंट के लिए, जब आपको ये पता चलेगा कि आपका लोन कितना हो सकता है, देन यू प्रैक्टिकली नो कि आपको कितने तक की प्रॉपर्टी लेनी है। वंस यू गेट टू दैट पॉइंट कि कितने की प्रॉपर्टी लेनी है, फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं दे कैन हेल्प यू टू फाइंड अ प्रॉपर्टी। हमेशा से जो हमारा यहाँ पे एक सीक्वेंस है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको एक टोटल पिक्चर, एक टोटल सिनेरियो दिखाते हैं कि इतने प्राइस के अंदर आपको क्या चीज़ मिल सकती है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये चीज़ भी आप देखें कि नॉट जस्ट दैट, वी वांट टू सी कि अगर इससे ऊपर आप $50,000 खर्च करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है।
Options and options. I mean, sky is the limit. जी There's an abundance of opportunities in real estate. जी So when you think of investment, मैं तो हमेशा से कहता हूँ और आपको मैं कितने सालों से बताया, जी there is no investment better than real estate. जी ऐसी है कि आप सोते हैं, सुबह उठते हैं सुकून से, सबसे पहले उठ के आप अपना फ़ोन निकाल के नहीं देते कि स्टॉक मार्केट कैसी जा रही है. जी आपको पता है आपके टेनेंट्स बैठे हुए हैं आराम से, जी आपका रेंट आ रहा है, जी यू ऑल सेट. जी अपने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड हो, आपकी सॉलिड अच्छी इनकम आ रही हो और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कंटिन्यूअसली अप्रिशिएट होती जा रही है. जी जी सो इसमें दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम हमेशा से किसी ने अभी पिछले दिनों और बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन हमारे पास आता भी है कि बहुत दफ़ा लोग हमें कंपेयर करते हैं उन लाइसेंस होल्डर्स को के साथ कि जो लोग वैल्यू कुछ ऐड नहीं करते हैं अपने काम के अंदर. दे डोंट रिस्पेक्ट देयर ओन वर्क बट ऑल दे डू इज़ जस्ट बिकॉज दे आर अ लाइसेंस होल्डर दे गिव मनी बैक और डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे नॉट सपोज टू डू. देखिए लाइसेंस होल्डर की तो छोटी सी एग्जांपल देते हैं. एक डॉक्टर है जी फॉर एग्जांपल, एक अटर्नी ले लीजिए. जी हमारी बेटी भी अटर्नी है, सो उसके हिसाब से करते हैं. जी एक अटर्नी है, उसने लॉ की डिग्री ले ली है, पास कर लिया है, ठीक है. अब उसने बार का एग्ज़ाम भी पास कर लिया है, लेकिन उसके बाद अगर वो किसी फील्ड में आके और उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रॉपरली, एथिकली एंड प्रोफेशनली, तो वो किसी की हेल्प कर ही नहीं सकते. डॉक्टर है, जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा एथिकली एंड प्रोफेशनली टू डू द राइट थिंग, वो किसी की सर्जरी ऑपरेट कर ही नहीं सकता है. जी ठीक है. तो गेटिंग अ लाइसेंस इज नॉट अ बिग डील. गेटिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, दैट्स द मैटर. जी बिल्कुल दोस्तों. और अगेन व्हेन यू गेट इन टच विद मैक्सपर्ट एक्सपर्ट आपको एक तो एक्सपीरियंस की, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 50 साल का कितनी दफ़ा हम बोल चुके हैं एक्सपीरियंस में है. अब बार जालिम मत बुलवाएं. तो अगेन जस्ट टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम पर नहीं अभी कंक्लूड नहीं कर रहे, अभी एक्सपर्ट की बात. हाँ जी, एक्सपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों की जो बेनिफिट है व्हेन यू गेट इन टच विद एक्सपर्ट एट मैक्सपर्ट. एक तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, आर एक्सपीरियंस डीलिंग विद नॉट जस्ट द रेजिडेंशियल साइड ऑफ द रियल एस्टेट बट आल्सो कमर्शियल साइड ऑफ अ रियल एस्टेट, एक वो चीज़ हमेशा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आप उस रियल्टर के साथ बात करें कि ना ही सिर्फ आप अपने घर लेने तक की बात उसके साथ बात कर सके, बल्कि वो आपको आपका अपना घर दिलवाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ भी लेके आए. बिकॉज एट मैक्सपर्ट आवर मिशन इज़ टू हेल्प यू बिल्ड इक्विटी, हेल्प यू बिल्ड एसेट्स जो कि आप अपने फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सके, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए है, चाहे वो आपके जो और भी कोई डिफरेंट गोल है, आपके रिटायरमेंट का पर्पस है, वो सब चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं. तो जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बीच में जो बेनिफिट है दोस्तों आपका मैक्सपर्ट के साथ काम करने का, वो आपको बेनिफिट ये भी ज़रूर होगा कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ें, अगर एक आप पूरा सर्कल आप समझें रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन का, कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके पास पैसे कितने हैं, चाहे वो आपकी डाउन पेमेंट है या मॉर्गेज आपको कितनी मिलेगी. दूसरी चीज़ आपको जो पता करनी होती है कि आपका घर ढूंढने में जो आपको हेल्प चाहिए होती है. फिर उसके बाद जो वो पूरा ट्रांजैक्शन का एक सिलसिला है, और उसके बाद एंड ऑफ द डे आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है उस बड़े एसेट को प्रोटेक्ट करने की. तो मैक्सपर्ट पर आपको ये तीनों सर्विसेज जो हैं वो अंडर वन रूफ आपको मिल जाएंगे. जी निक, लेट मी ऐड वन मोर थिंग व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऐड थिंग. जी वैल्यू एडेड, देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा पर्पस है रियल एस्टेट का, इज हेल्पिंग पीपल. जी, और बिल्कुल सही बात आपने कही है कि हम एक दफ़ा हेल्प करके पीछे नहीं हट जाते हैं जी, कि भाई चलो कस्टमर को घर दिला दिया, अपने पैसे लिए चले गए. नहीं, हम उनसे ऐसे रिलेशनशिप रखते हैं, उनको इसे अवेयरनेस देते हैं, ऐसी एजुकेशन देते हैं कि दैट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. वी आर कीप हेल्पिंग एंड हेल्पिंग एंड हेल्पिंग देम. जी, दैट्स व्हाट यू कॉल वैल्यू एडेड. एक दफ़ा पैसे देने से यू डोंट ऐड द वैल्यू. जी, यू ऐड अ वैल्यू for someone where you have like an ongoing process where you're helping people to make their lives better, easy and happy. Not for one person,
for the entire family. and that's the value added we're talking about. जी निक भाई, और बहुत ही खूबसूरत अभी निक भाई ने बात की कि when we get in touch with any client, we care not just care about that particular client, but we care about the whole family. और वो जो एक रिलेशन बिल्डिंग है at Maxpert, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी, वी बिलीव इट्स अ बाय प्रोडक्ट. जब हम काम करते हैं पैसे के लिए ही काम करते हैं, फ्री में नहीं करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं. लेकिन at the same time, it's very important for us to add value to your life, add value to your real estate goal. It's very important that you understand that, you know, when you get in touch with Maxpert is a company that not only help you getting the deal done, but it also going to help you understand the real estate, help you understand real estate better than what it was before you get in touch with Maxpert. साथ ही साथ उसके आपको जो एक पूरा ट्रांजैक्शन का जो एक जिसको कहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है, वो आपको मिलेगी Maxpert के ऊपर. और साथ ही जैसे निक भाई ने अभी बात किया कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पस आपको वो एक घर दिलाना नहीं है. हमारा पर्पस ये है कि वी वांट टू गाइड यू फर्दर डाउन टू गेट ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ रियल एस्टेट आल्सो. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट. वो तो जब आप काम करते हैं किसी के साथ मिलके मेहनत करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करती है, वो आपके पास आ जाती है. लेकिन जो आप हेल्प करते हैं लोगों को, जो उससे जो आपको खुशी होती है, नॉट ओनली यू जिसके लिए करते हैं, और उसमें कितने लोग जो होते हैं उनकी फैमिलीज के लिए, एंड दैट जो हैप्पीनेस उससे मिलती है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं है. जी बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ तक दोस्तों फीचर्स की बात करें, क्योंकि हम लोग at Maxpert we believe in technology. Data हमारे लिए बहुत important है, technology बहुत important है, लेकिन above all we always give lot more importance to human touch. जो हमारा communication है, जो हमारी in person meeting है, या जो हम हमेशा से हम इस चीज़ को encourage करते हैं कि get in touch with us to set up a appointment, one-to-one appointment with us. लेकिन जो features हैं, that does not mean कि हम individual one-to-one meeting में believe करते हैं then we don't have technology. नहीं, हमारी websites, it's a top of the line website where you can go and, you know, start your search online. 24/7 website हमारी available है. You can always search on that website. जहाँ तक हमारी जो बाकी का जो process है, चाहे वो डॉक्यूमेंट साइन करवाने का प्रोसेस है, वो इस टाइम का DocuSign जो है हम लोग यूज़ करते हैं. उसके बाद जो आपका प्रॉपर्टी एनालिटिक्स है, जब वो एनालिटिक्स के साइड की अगर हम बात करें, वी इन आवर कंपनी वी आर स्पेंडिंग about $3,000 every month just to get that right data. Just to get access to that right data, we are spending lot of money every month just for you guys, so that कि जब आप हमारे पास एक ट्रस्ट के साथ आप आते हैं, जब आप हमारे साथ एक विश्वास से आप हमें कहते हैं कि ये हमारे पैसे और आप इसको हेल्प करें इन्वेस्ट करने के लिए, सो वी फील रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द राइट एडवाइस. एंड उसके बीच में जो फीचर्स की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें वी हैव एक्सेस टू ऑल द मॉडर्न फीचर्स. जी नहीं भाई, सब बोल दिया आपने, सब बोल दिया. कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए. जी नहीं, आई मीन यू सेड वेरी वेल. जी. एंड मतलब ये कि हमेशा से हम कहते आए हैं, फिर दोबारा कह रहे हैं, रियल इस्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ टॉक टू एन एक्सपर्ट. जी. फियर फैक्टर जो भी आपका है उसको निकाल दीजिए. जो चीज़ें आप समझते हैं कि आपको बहुत दूर नज़र आती हैं, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन अमेरिका. इम्पॉसिबल में से अगर आप उसको सही तरह से लिखें तो आई एम पॉसिबल. सो जस्ट बिलीव इन दैट, कीप योर ड्रीम्स अलाइव and get in touch with experts. Ji, if you want to get in touch with us, please do give us a call. Our number is 800-450-8090. हिंदी में बोलिए. 800-450-8090. जी, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें. Not only you can call on this number, you can also send us a text message. क्योंकि 800 नंबर है, बहुत दफ़ा हमारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि 800 नंबर है तो शायद कोई सिस्टम उठाएगा या वो सारी चीज़ें, लेकिन यू कैन कॉल इट and it get to us directly. अगर कोई नहीं उठा रहा तो then it get to my phone, निक भाई's phone. मैसेज आप कर दें, सबसे बेस्ट है. then somebody gonna call you within 30 minutes. अगर 30 मिनट के अंदर कोई कॉल नहीं करता तो प्लीज़ आप दोबारा से कॉल करने. टेक्नोलॉजी नहीं करता तो करते रहें. करते रहें. टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी
tend to crash sometime. And not only that, I mean, अगर आप फोन करते हैं कोई नहीं मिलता है, जी folks, we are very easy to find. जी Dallas में आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, any restaurant, जी we'll be sitting right there and जी, talking बिल्कुल। to someone. जी बिल्कुल। सो प्लीज़ आप हमारे साथ इन टच करें। अगेन जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ डू गेट ऑन आवर वेबसाइट maxpert.com, that is maxspurt.com. You will find more about our company, you will find more about our team, but also you also find a lot of resources on our website. Also encourage you to find us on social media platform. Again, we do a lot of funny videos, we do a lot of informative videos, we share a lot of news that जो कि शायद आप मिस कर जाते हैं क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि अगली शाहरुख खान की मूवी कौन सी आ रही है। तो वी आर हेयर to bring you the valid, relevant information in terms of real estate. So if you stay touch with us on social media, you will find a lot of information. मेरा ख्याल है अगर कह दें कि शाहरुख खान का जब आपने नाम लिया, जी अगर डैलस में आपको रियल एस्टेट के खान देखने हैं, जी so there are 2 Khan sittings right here. जी बिल्कुल। So please do get in touch with us. And again, if you Before want, we go, just अपनी जो प्रॉपर्टीज जो भी अवेलेबल जी, उसके बारे वही में, मैं कमर्शियल्स और उसके बारे में बता जी दीजिए। सो दोस्तों, जैसे हर प्रोग्राम के लास्ट में आई शेयर विद यू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ ऑन ग्राउंड. So right now we have 3 properties, one in Heath that is under construction. We are hoping that we'll be able to give possession of that property to any prospect buyer by summer. Then we also have 2 lots. Both lots are acre lot. We already start working on one. Foundation is in place right now, and we are moving towards framing side of it. And it's a cul-de-sac, and there is a pond right by this lot. Beautiful, amazing nature around this particular property. So you still can get us with on drawing board. We can still customize it if you want to. Not the outer wall, but inside. If you want to customize anything, we can always do that. And then the land we have available in Northeast Dallas County. जी Tell them about that as well. जी so वो आप बता दें निक भाई, मेरे पास उसकी पूरी complete detail नहीं है. So we have a commercial land जी. right off the highway, very major, very busy highway in a Northeast Dallas County. I'm not going to give further details about the address and everything. It's जी. about 10 acres right off the highway. जी Very, very good location for any commercial, any retail, a banquet center, a medical plaza, anything. We do have that available at a very good price. So give us a call. जी और इसी के साथ एक हमारा बिल्कुल रेडी ब्रांड न्यू 2023 बिल्ट 5500 स्क्वायर फीट ऑन कॉर्नर लॉट, acre corner acre lot by Grand Home रेडी है. इफ यू वांट टू बाय, लिस्टिंग प्राइस जो है उसका 2.1 million था, लेकिन स्पेशल प्राइस देर. जी so आप उसके लिए भी कॉल कर लें. अगेन आवर कॉल बैक नंबर इज 800-450-8090. इसी के साथ दोस्तों, इफ़ यू वांट अस टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई आपका क्वेश्चन है दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट, प्लीज़ डू लेट अस नो. हमारा पॉडकास्ट का जो पिक एंड चूज़ का क्राइटेरिया है वो ये है कि वी वांट टू स्टे क्लोज टू द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. और जो कॉमन क्वेश्चन है टेक्निकलिटी के लिए, वी डू वेबिनार्स. अगर आपको टेक्निकल साइड आपको समझना है कि रियल एस्टेट के फॉर्म्स पे क्या है या फर्स्ट टाइम होम बायर की टेक्निकलिटी क्या है, सो वी हैव कोर्सेज अवेलेबल जो कि पेड हैं. आपको उसके आई थिंक $70-80 आपको देने पड़ेंगे इफ़ यू गो आउटसाइड एंड बाय. लेकिन अगर आप हमारे से मॉर्गेज ले रहे हैं, वी कैन गेट यू दोज कोर्सेज फॉर फ्री. तो वो भी आप उसका एडवांटेज ज़रूर लें. एक चीज़ और हम ऐड कर दें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडेड, कि जो वैल्यू हम ऐड करते हैं, if you look at from a different perspective, एक property की value, market value, or you can say appraisal value, like say 500,000, उस property की हम deal ऐसी structure करते हैं अपने client के लिए कि उसको 450,000 में दिलवा देते हैं. बैंक की appraisal value, market value is over 500,000. जी. तो उसमें $50,000 की equity already अपने client को हमने दे दी उसके अंदर. जी, जी. And that's what you call them value added. जी. Then on top of that, अगर आप अपने client के लिए hardcore fight करते हैं seller से, जब repairs आती हैं जी उसके ऊपर, और उसमें you just try to work it out जी and you try to get additional money. जी इसलिए कि देखिए, जो शख्स
आपसे पैसे एक्सपेक्ट करता है, हमारी भी सर्विस होती है, उसके पैसे होते हैं जी. इफ दे वर्क ड्यू डिलिजेंटली, ऑनेस्टली, एंड व्हाट वी कॉल फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रियल्टर, वो आपको हमेशा हमेशा जी. इतनी अच्छी डील दिलवाएगा कि यू विल बी सरप्राइज कि वाओ, ये मुझे पैसे भी बचवा दिए और इसने प्रॉपर्टी भी इतनी में दिलवा दी और इसकी मार्केट वैल्यू ये है. अगेन द वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिशन जो है हमें चाहिए, बिल्कुल, नॉट जस्ट वैल्यू कि पैसे से उसकी वैल्यू हाँ, बना, नहीं वो अपनी अच्छा, जेब से पैसा नहीं. अफसोस की बात यह है कि नहीं भाई, वो वैल्यू देख ही नहीं रहे. ऑल दे आर लुकिंग फॉर इज कि मनी मिल जाए. और जो कि एक माइंडसेट मैं समझता हूँ, जहाँ आपके अंदर इतने सारे फियर्स हैं, आपको ये लगता है कि ये जो खर्चा है ये मैं किसी और की जेब से पूरा कर रहा हूँ. अपने सपनों का घर बना रहे हैं दूसरों के सपने तोड़ के. बस दूसरों की जेब काट लूं. हाँ जी. वो क्या कहते हैं, वो मेले में गए. हाँ, मेला देखने गए हैं और ध्यान मेले पे नहीं है, जेबों पे. तो आप समझ रहे हैं कि क्या आप किस तरह से आप काम करें. खत्म करें प्रोग्राम, हम भी मेले में चलते हैं, हम भी देखें किसी की जेब पे. जी बिल्कुल. आपके साथ अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें. अगेन दिस इज रॉय मैल्किसन एंड मिस्टर निक मिर्जा साइनिंग ऑफ. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो. थैंक यू.